أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ آج کی ہماری فائنل ریویژن کی فائنل یعنی کہ آخری کلاس ہے۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کا فائنل کوئز ہوگا، تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ کل سسٹر حفصہ نے آپ کو قرآن پارٹ کی مکمل ریویژن کروائی، آج ہم گرامر پارٹ کی ریویژن بھی کریں گے اور کوئز کے بارے میں تھوڑی بات چیت کریں گے۔ اور کل کسی سسٹر نے کہا تھا کہ لاسٹ میں آپ کے کچھ کویسچنز ہوتے ہیں کہ اسم فعل حرف کی بنیاد پر الگ کریں، واحد جمع اور اسی طرح سے مذکر مؤنث، اس کو بھی آج ہم دوبارہ دیکھیں گے۔ ایک دن پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، آج ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کورس میں ابھی تک ہم نے کیا کیا سیکھ لیا، پھر اس کی ہم باقاعدہ انشاءاللہ شروع بھی کر لیں گے ریویژن۔ سب سے پہلے ہم نے اسماء پڑھے تھے۔ اسماء، اچھا جی، قرآن مجید میں آپ مجھے بتائیے کہ کون سی نشانیاں ہم نے دیکھ کے بتانا ہے کہ یہ اسماء ہے؟ آپ بتاتے جائیں، انمیوٹ کر کے بتاتے جائیں، میں لکھتی جاؤں۔ الف لام، الف لام، تنوین، تنوین، یا نون، واو نون، الف تا۔ تنوین، یا نون، اسی طرح سے واو نون۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ اس کو ہم ایسے اور یہ ایسے لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، اور ہم نے کہا تھا کہ مؤنث کے لیے کیسے پہچانیں گے؟ مذکر کو ہم تا لگا دیں گے اور اس کی جمع بنانے کے لیے الف تا لگا دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ الف تا۔ اچھا جی، اور بھی کچھ اسماء ہم نے پڑھے ہیں، کون سے ہیں وہ؟ نار، ہوا، ہم، ہوا، یہ، ہم، ٹھیک ہے، کا، اور یہ ہم پورا پورا ٹیبل انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے ہو، ہم والے کیے، اور اسماء ہم نے کون سے سیکھے؟ ہم نے کہا یہ جو اشارے وغیرہ ہم کرتے ہیں، ہاذا ہذی، یہ بھی اسماء ہیں۔ اسی طرح اسماء سے اشارہ۔ تو کیا یہ سارے اسماء میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اسماء پڑھے ہیں، وہ کون سے ہم نے پڑھے ہیں؟ اسم فاعل، اسم فعل، اسم مفعول، اچھا اس کو اسم فعل نہیں کہتے، اس کو ہم کہیں گے اسم مصدر۔ مصدر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو ہم اسم فعلن، تو ہم نے اس کا فعلہ کا ٹیبل میں جو مصدر فعلن بنایا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سارے کے سارے اسماء ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے علاوہ ہم نے افعال پڑھے۔ افعال میں ہم نے کون کون سے پڑھے؟ ماضی، ماضی، مضارع، مضارع اور امر نہیں، امر نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس اتنے، جو اس کے بعد والے وہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول ہم نے بات کی تھی، یہ اسماء ہے تو ان کی جمع بھی بنے گی، ان کو الف لام بھی لگے گی، ان کی مؤنث بھی بن جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہمارے افعال جو ہم نے کیے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ ہم نے شارٹ ٹیبل کیسے بنانا ہے۔ شارٹ ٹیبل کے بعد ہم نے ایک اور چیز سیکھی، وہ ابھی ہمارے کورس کا حصہ نہیں لیکن پھر بھی آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ جیسے ہم نے کہا فعلت، اور پھر ہم نے اس کے ساتھ ضمائر جوڑ دیے، فعلتہ۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے ان کو اس طرح سے ٹکڑے بنا کے پورے ٹیبل کر لیے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو ہم انشاءاللہ QC2 میں اور اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ اچھا جی، اب اس میں ایک چیز تو رہ گئی، ہم نے ایک اور بھی تو چیز کی ہے، بتائیے کیا رہ گیا اس میں؟ گیس کریں۔ اسم بھی ہو گئے، فعل بھی ہو گیا، اب کیا رہ گیا؟ حرف۔ حرف۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ حروف کے ہم نے پورے ٹیبل بنائے۔ ٹھیک ہے؟ ہم نے کیا کہا کہ قرآن مجید میں آنے والے الفاظ یا تو اسماء ہوں گے یا افعال ہوں گے، اور باقی جو بچیں گے وہ سارے حروف ہوں گے، حروف ہوں گے جو ان کو جوڑیں گے۔ جو ان کو جوڑیں گے۔ حروف میں ہم نے
7 तो हरफ जर सीखे हैं। अब एक और चीज हमारे अस्मा में आ जाती है, वो कौन सी है? मा, इंदा, इंदा। अब आपको क्वेश्चन में अगर मुस्लिमून, इसी तरह से हाजा या इसम फाइल, कोई जमीर अटैच या फिर डिटैच, दोनों में से कोई, इसी तरह से अगर मा और इंदा ये पूरा एक टेबल बनाकर दे दिया जाए तो आपने इन अस्मा को अलग से पहचान लेना है। ठीक है, ये अफ़आल और हुरूफ से अलग हो गए। अगर आपको पूरा एक कॉलम दिया जाता है, वहां पर मा और इंदा हो, तो आपने उसको पहचानना है कि ये अस्मा है। जहां आप ज़मायर को देखें वहां आप देखें कि ये अस्मा है। इसम फाइल, इसम मफूल, इनको भी आपने अस्मा वाली कैटेगरी में डालना है। अफ़आल वो होते हैं जिसमें काम का करना या होना पाया जाए और उसमें जमाना भी हो। ठीक हो गया, उनको इस तरह से हम अलग कर लेंगे। अब हम इसको फिलहाल करते हैं खत्म और हम अपनी रिवीजन शुरू करते हैं ताकि आप लोग मेरे साथ की बाकायदा दोहराई कर लें। और एंड पर फिर हम करेंगे इसे इस तरह से कि आप मुझे अपने होमवर्क में से भी पूछ लीजिएगा जहां जहां आपको कोई दुश्वारी आई, या वर्कबुक में भी, ताकि हमारा इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाए। ये हम कल कर चुके, इसमें तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये कल सिस्टर अफसा ने बहुत अच्छा आप लोगों को रिवाइज करवाया था। मैम थोड़ा सा है वो, फिर मैं आप एंड हाँ पे जी, बता एंड पे, देंगे हाँ मेरा जी, एंड पे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, हम इसको इंशाल्लाह एंड पर कर लेंगे। ठीक हो गया जी? ठीक है। आज हमने यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, ये हमारा पहला टेबल है। ये हमने सबसे जो पहली क्लास उसमें हमने सीखा था, आप अपने दाएं जो हाथ है इसको मुज़क्कर कंसीडर कर लें और इसके साथ हम जो इशारे करेंगे वो मेल वाले होंगे इशारे। इसी तरह हमने कहा कि हम अपने लेफ्ट यानी कि बाएं हाथ से जो इशारे करेंगे वो मुअन्नस के इशारे होंगे। उसमें हमने सिर्फ वाहिद के इशारे सीखे, सिर्फ हमने इशारे में उलाई का और हा उलाई सीख लिया क्योंकि वो मिलते जुलते थे। बाकी उसके जो पूरा टेबल जैसे हम हुआ हम का बनाते हैं, ये हम इंशाल्लाह QC4 में जाके सीखेंगे। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद में मुअन्नस के सीखे कम इस्तेमाल हुए हैं। हमारा कोर्स है कि आओ कुरान सीखें आसान तरीके से, ताकि जो अल्फाज ज्यादा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हम उनको पहले सीखें। तो ये जो हमारा पहला टेबल हमने सीखा था, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, और पहले हमने एक हर्फ साथ ही सीख लिया था, वो क्या था? मन। मन क्यों सीखा था? मन हुआ वो कौन है, ताकि हम क्वेश्चन आंसर कर सकें, डायलॉग बना सकें। ग्रामर हमने कैसे करनी है? इशारे किया करें, इसमें शर्माया ना करें। इशारे कैसे करने हैं? पहले हम देखते हैं कि हमने अपने पूरी बॉडी को कैसे हमने इस्तेमाल में लाना है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। ये हमारा पहला टेबल है। ऐसा करते हैं हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। कोई एक सिस्टर हैंड रेस करें और इस टेबल को रिवाइज कर लें। जी, सिस्टर फातिमा ने हैंड रेस किया, कीजिएगा टेबल और इशारे आपने भी किए। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनो हम सब। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका टेबल ये ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपसे पूछूं हुआ का जवाब कैसे देंगे? हुआ से देंगे, हुम का जवाब हुम से देंगे, अंता का जवाब अना से देंगे और अंतुम का जवाब नाहनो से देंगे। नाहनु से देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो इस तरह वाली प्रैक्टिस ना, क्योंकि जो सामने लिखा हुआ वो तो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा ताकि हम इंशाल्लाह ज्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके और हमारा जो मकसद है कि हम ग्रामर को ज्यादा आसान तरीके से सीख लें वो भी पूरा होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसकी हमने बोलचाल कैसी की थी, वो हमने अभी देख लिया कि जैसे हम कहेंगे मन हुआ हुआ मुस्लिम, इसी तरह से मन हम करेंगे तो हम मुस्लिमून। इसके बाद हमने एक चीज सीखी, वो है किताबुन।
यानी कि एक किताब आ बुक। लेकिन अगर इसको खास करना है कि ये कोई खास किताब है तो हम इसके साथ अल लगा देंगे। इसकी तो हमने काफी प्रैक्टिस की है। इस पे अब कोई आपको किसी भी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह कुछ इस तरह से तो नहीं कि अभी कुछ समझ ना आई हो इसकी? पूछ ले ताकि इसको हम साथ साथ इस तरह से कवर कर लें कि बार बार हमें ये चीजें ना दोहरानी पड़े। ठीक है। और इसमें क्या करना है, जब हम अल लगाएंगे तो तनवीन गिराकर सिंगल हरकत पढ़ेंगे। जैसे अल किताबुन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अल किताबु। इसी तरह से हमने सीखा था जमा बनाने का तरीका। जमा बनाने में ये आपने रूल इसी तरह से याद रखना है, क्योंकि जब हम अफ़आल में से इसम फाइल, जब हम इसम फाइल कहेंगे ना, जब हमने कहना है फातिहून, फातिहुन, तो उसकी जमा फातिहून बनानी है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है मुस्लिमुन और इसकी जमा वाव नून वाली, मुस्लिमन और मुस्लिमिन की जमा मुस्लिमीन वाली। ठीक हो गया? मुस्लिमुन मुस्लिमूना, मुस्लिमन मुस्लिमीना, मुस्लिमिन मुस्लिमीना। यही कायदा, यही रूल हमने इसम फाइल और इसम मफऊल पर भी अप्लाई करना है, सेम इसी तरह से। अच्छा जी, ये अब एक मर्तबा मैं चाहूंगी कि कोई पढ़ ले। सिस्टर रेहाना ने हैंड रेज किया था, अगर मैं जी जी। जी अब आप ऐसा करें कि पहले मुस्लिमुन है ना, आप इसको अल मुस्लिमू बनाए, फिर अल मुस्लिमूना। जी। शुरू में अगर अल मुस्लिमुन होगा खास के लिए, तो फिर आखिर में दो पेश की तनवीन को एक पेश में बदल देंगे। अल मुस्लिमू अल मुस्लिमून जमा के लिए। जमा के लिए ठीक हो गया। अल मुस्लिमन अल मुस्लिमा अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमिन अल मुस्लिमी अल मुस्लिमीना, ये दोनों के लिए एक जैसे ही होगा। अभी माइक ऑन रखिएगा। अगर हम यहाँ पर कहते जी। हैं अल प्लस काफिरुन, फिर हम उसको कैसे बनाएंगे? फिर हम उसको काफी रू बना देंगे। अल अल काफिर, काफिरु और अल काफिरु काफिरू, की जमा कैसे बनाएंगे? अल काफिरून अल ना, काफिरुना। अल काफिरू। ठीक हो हाँ गया। जी अब अगर हम कहें कि काफिरिन, जी, फिर हम बोलेंगे अल काफिरी, रा के नीचे जेर कसरा लगा देंगे, और अल काफिरीना। अल काफिरीना। ठीक हो गया जी। जी। अब ये टेबल कौन पढ़ना चाहेगा? अच्छा, अब आपने ये बात भी याद रखनी है, जो हुआ हूं वाला टेबल था, ये इनको कहते हैं ज़माइरे मुनफसिला। ये थोड़े फासले पे कैसे आते हैं? जैसे हुआ मुस्लिमुन, यानी कि दो अल्फाज में ये जुड़ते नहीं है, ये अलग हो जाते हैं शुरू में। ठीक है। लेकिन ये जो हु, हुम, का, जी, कुम, ना, ये जुड़कर आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो पूरा टेबल है, हु उसका, हुम उन सब का आपका, जी मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। ये कहाँ पर यूज होंगे? जैसे हम कहें कि उसकी किताब, उसका कलम, इस ये जो इतने भी जो भी हम का वाला माना यूज करते हैं, उसमें हम ये वाले जमायर यूज करते हैं। जी सिस्टर समिया अहमद जी, आप रब्बू का टेबल कर लीजिए। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हम सबका रब। हम सब का रब। अब आपके सामने ये एक टेबल है, आप रब्बू की बजाय यहाँ पर कर लें दीनू। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हम सबका दीन। जी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पता चल रहा है कि अब आपके कॉन्सेप्ट्स कम अज कम ये जो जोड़ने वाले जमायर वाले ये इतने क्लियर हो चुके हैं कि आप इसको अब हुआ हम वाले के साथ गड़मड़ नहीं करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सिस्टर जवेरिया, आप ये इसका टेबल आप बनाएंगी सारा, क्योंकि हम इसको अभी देखते हैं कि ये क्या है। ये है हुआ मुजक्कर के लिए और हिया मुअन्नस के लिए। सिस्टर जवेरिया, आप अपना माइक अनम्यूट करके ये वाली स्लाइड आप पढ़ना। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमु।
हिया मुस्लिमतुन, हुवा मुअमिनुन, हिया मुअमिनतुन, हुवा सालिहुन, हिया सालिहतुन, हुवा साबिरुन, हिया साबिरतुन, हुवा शाकिरुन, हिया शाकिरतुन। शाकिरतुन। अच्छा जी, अब हम कह रहे हैं कि मुस्लिमून का हमने मुस्लिमूना बना दिया, मुस्लिमतुन का कैसे बनाएंगे? इसकी हमने जमा बनानी है, मुस्लिमाती, मुस्लिमात। अलिफ अच्छा, जहां पर आप देखिए ना अलिफ दो पे पेश है तो आप जमा में भी उसको दो पेश लगा लें, ठीक हो क्या? इसमें अब जैसे हम मुस्लिमन और मुस्लिमिन दोनों में हम ऐसा करते हैं कि मुस्लिमीना कर देते हैं, सेम इसी तरह से जब हम मुअन्नस पे आते हैं तो मुस्लिमा, मुस्लिमातन और मुस्लिमातिन दोनों के लिए मुस्लिमातिन, ठीक हो गया? दो जबर वाला मुस्लिमातन नहीं बनाएंगे, ठीक हो गया? इसकी मिसाल क्या है? मुअन्नस की मिसाल, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये हु और हा को हम ऐसे याद रखेंगे ताकि हम इसको आपस में मिक्सअप ना करें। अच्छा जी, रब्बुहा सिस्टर रिहाना, अब आप ये जो मुअन्नस वाले सीगे कर लीजिए, ये वहां पर आएगा जी। जहां पर हम हु कहते हैं ना, दीनुहु, इसी तरह से आप पढ़िए, अब इसको मुकम्मल पढ़ लें, रब्बुहु रब्बुहा, इस तरह से पढ़ लें। जी, रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहा दीनुहु दीनुहा, अल्हम्दुलिल्लाह, किताबुहा नहीं किताबुहु किताबुहा। किताबुहा। अच्छा जी, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग इसको इस तरह से कंफ्यूज होके पढ़े, सिर्फ ये कि हम इसको इतना क्लियर कर लें कि हमें खुद समझ में आने लग जाए कि अगर रब्बुहु हो तो रब्बुहा मुअन्नस के लिए यूज होगा, ठीक है? स्लाइड में सामने आपको नजर ना आ रहा हो तो थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है, ठीक है? अब ये पूरा टेबल है, सिस्टर रिहाना पढ़ेंगी। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। इस्मुहा। अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये स्लाइड आपके सामने पूरी है, मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन और मुस्लिमातुन, ठीक है? ये जो वाहिद और ये जो जमा, दोनों की चीजें अब हमारे सामने कैसे क्लियर होके आई कि मुजक्कर से जब हमने मुअन्नस बनानी है तो गोल ता लगानी है, जब इसकी जमा बनानी है तो अलिफ ता लगा लेंगे। सिस्टर फातिमा आप ये पढ़ लीजिए। जी, मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, मोमिनतुन मोमिनातुन, सालिहतुन सालिहातुन, काफिरतुन काफिरातुन, मुशरिकतुन मुशरिकातुन। अच्छा सिस्टर, सिस्टर, अगर इसके ऊपर मुस्लिमतन होगा तो फिर हम मुस्लिमातिन पढ़ेंगे। तीन पढ़ेंगे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इसको दोबारा पढ़िएगा, किसको सिस्टर? ये जो अभी आपको ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये जी जी, ये क्या लिखा हुआ है? मुमिनतुन मुमिनात, मुमिनातुन, हाँ जी। इसको आपने पहले ये हमजा पे झटका नहीं दिएगा, हम थोड़ा थोड़ा मु- तजवीज सीखेंगे, जी, मतलब ये कि मुमिनतुन इसमें इतना इतना मुमिनातुन। अप्लाई कर लेंगे जितना हमें आता है, ठीक है? तजवीज की क्लास नहीं है, लेकिन हम इसके रूल्स जो हमें पता है उनको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है क्या? अब हमने कुछ सीखे थे हुरूफ, अगर मैं पूछूं कि ली की मिसाल के लिए कौन सा फ्रेज हमें याद हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाह। और आलमीन, मिन कहाँ पे सीखा हमने? मिनश शैतानिर मिनश रजीम, शैतान। और अन? रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके सामने भी आ गया। अब ये टेबल ऐसा करेंगे, सिस्टर फातिमा, सिस्टर जवेरिया, सिस्टर रेहाना, आप तीनों ने ये टेबल करके अपने हैंड डाउन करने, फिर तीन सिस्टर हैंड रेज करेंगी, फिर हमने अगले जो टेबल है उनसे सुनेंगे, ठीक है? सबसे पहले सिस्टर फातिमा शुरू करें। लहू उसके लिए, लहू उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिस्टर जवेरिया, मिन? हाँ जी, मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सब से, मिन्ना हमसे। मुअन्नस के लिए? मिन मिनहा मिनहा, ठीक है? मिनहा, मिनहा नाम भी रखते हैं ना, मिनहा रखते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन रखते हैं मिनहा उस औरत से। अच्छा जी, अब सिस्टर रेहाना,
ऑन का जी। टेबल कर लीजिए। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। अच्छा जी, ये जो तशदीद है ये भी हमने क्लियर किया था ना कि एक नून मिन का है और एक नी का है। अब इसका मिजी पढ़ना सही नहीं था, जैसे हमने जिद नहीं किया इसी तरह से मिन्नी मिन्नी, ये आसानी के लिए होता है। अरबी जो जुबान है इसमें काफी अल्फाज इस तरह से थोड़े थोड़े से तब्दील कर लिए जाते हैं ताकि बोलना आसान हो। तो क्या जी, अब सिस्टर समिया है, सिस्टर नाहिदा, ये दो सिस्टर, चले इनके साथ सिस्टर रिहाना। अच्छा जी, सिस्टर समिया आप भी ही वाला टेबल कर लीजिए। ही उहिम उन सब से, बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से, बिहा उस औरत से। जी माशाअल्लाह। ये सिस्टर नाहिदा आप पी ही वाला कर लीजिए। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरा सिस्टर। जी सिस्टर रिहाना कौसर अब आप अलैहि वाला कर लीजिए। जी। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलिया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। अच्छा जी, अब आपको खुद थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि कहाँ पर मिस्टेक हो गई? जी। कहाँ पर? मुझ में यो जो हाँ जी, अलिया हम। अलैया यहाँ पर जी। ना ये छोटा सा एक टेस्ट है। अच्छा हम अच्छा। अक्सर करते हैं, हम रवानी से देख के पढ़ लेते हैं, ये इसलिए कि ताकि हमने कुछ टेबल पीछे कर लिए तो अब हम रवानी से इसका तर्जुमा कर सकते हैं। अलैहि उस पर, अलैहि मुन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, और अलैहा उस औरत पर। ठीक हो गया जी। इसी तरह से जी। हमने इला, मा और इंदा, इनके हमने फ्रेजेस भी किए हैं। बी से हमने कौन सी फ्रेज याद की थी? समझे, मैं भूल गई। बी से कौन सी फ्रेज है? बिस्मिल्लाह। और पी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, से फी फी सबीलिल्लाह, सबीलिल्लाह, सबीलिल्लाह। और अला से सलाम अलैकुम, अस्सलामु अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम। और इला से है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाहि व इन्ना मा से इलैहि इन्ना राजिऊन, अल्लाह मअस साबिरीन। अम्मा कम रियाला अस्ताबिरीन, इंदका, आपके पास कितने कम रियाल है? इंदहु। अब ये वाले तीन टेबल भी। अच्छा, कोई और तीन सिस्टर हैंड रेस करें, फिर हम इस करके फिर हम आगे इंशाल्लाह अपने हाल पर जाएंगे। ये सिस्टर फातिमा और सिस्टर फारिया, सिस्टर नाहिदा। अब आप बारी बारी, सिस्टर नाहिदा इलेही। अनम्यूट कीजिए सिस्टर। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। जी अब सिस्टर फातिमा। जी, मा आहु उसके साथ, मा आहुम उन सबके साथ, मा आका आपके साथ, माई मेरे साथ, मा आकुम आप सबके साथ, मा अना हमारे साथ, मा आहा उस औरत के साथ। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिस्टर फारिया थी, कहाँ गई? छुप गई। चलें सिस्टर जवेरिया आप करेंगी, फिर आइंदा। सिस्टर फारिया आ गई है तो चले फिर हम सिस्टर फारिया आप आपसे अगला करवा लेंगे, ठीक है? अभी हम सिस्टर जवेरिया से सुनते हैं ये वाला। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, हमारे इंदहा उस औरत के इंदहा पास, उस औरत के पास। औरत के पास। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि दो हरूफ को जोड़कर भी और अस्मा को जोड़कर इस तरह से ये टेबल बनाए जाते हैं। ठीक है, इलई और ही ये जमायर है, लेकिन मा और हु दोनों के दोनों अस्मा है, ये जोड़कर भी टेबल बन गया।
یہ ہمارے حروف جر ہیں لا یا لی. یہ کہاں پر لا یا لی ہو جاتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لہو لہم. لکا کے بعد جب ہم لی کہتے ہیں تو لام کے نیچے زیر آ جاتی ہے. وہ اس کی مجبوری ہے کہ یا کے ساتھ ہم لئی کر کے اس طرح پڑھ نہیں سکتے. لی من عن بی فی علا الا یہ 7 حروف جر ہیں، لیکن ما اور اندا اسما ہے، حروف جر نہیں ہے. یہ حروف کی طرح استعمال ہو جاتے ہیں، جیسے لکھا ہوا نیچے ما اور اندا حروف ہیں مگر حروف جر نہیں ہے. یہ اس میں ظرف زمان ظرف مقام وہ ہے، لیکن اس میں ہم یہاں پر اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بس ہم اس کو یاد رکھ لیں گے کہ ما اور اندا اسما ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. جیسے ہم نے سیکھا امنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، لیکن عربی میں ہم نے اعلیٰ کے لیے کیا سیکھا؟ پر کے لیے سیکھا تھا اعلیٰ، تو امنت اللہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے امنت باللہ. اسی طرح سے کبھی حرف جر عربی زبان میں تو ہوگا مگر دوسری زبان میں غائب ہو جائے گا، جیسے اغفر لی، بخش دے مجھے. ٹھیک ہے، اب ہم یہ نہیں کہتے بخش دے میرے لیے، کیونکہ لی کا تو ہم نے لیا پڑھا تھا. اسی طرح سے کبھی حرف جر عربی زبان میں نہیں لیکن دوسری زبان میں ضروری ہے، جیسے ورحمنی، اور رحم فرما مجھ پر. اب جب تک ہم مجھ پر نہیں کہیں گے نا تو ایسے پوری سمجھ نہیں آئے گی. اور رحم فرما مجھ، جہاں تک سمجھ نہیں آتی، اسی لیے پر لگانا ضروری ہے، لیکن ورحمنی یہاں پر اعلیٰ لگانا ضروری نہیں ہے. حرف جر کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، جیسے لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا. یہ اردو میں سے بدلا ہے، انگلش میں بھی دیکھیں گیٹ ان، گیٹ آؤٹ، گیٹ آف، یہ ساری چیزیں بدل جاتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم نے اس کی مثال دیکھی تھی سولی، ایک ہم نے فعل دیکھا سولی یعنی کہ نماز پڑھ. یہ کب نماز پڑھ ہوگا؟ جب ہم کہیں گے سولی لی ربی کا. لیکن اگر ہم کہیں گے سولی علی محمد یعنی کہ رحمت بیج محمد پر، یعنی کہ لی اور علی 2 حرف جر تھے، بدل گئے سولی کے ساتھ تو ہمارا معنی تبدیل ہو گیا. اسی طرح سے ہم نے سیکھا ہاذا ہاؤلائی، ذالکا اولائکا. اس کی مؤنث آپ دیکھے بغیر ذرا بنائیے گا. ہاذا کی ہم نے کیا بنائی تھی؟ هذه حاضی جمع کیسے ہوگی؟ ہاؤلائی ہاؤلائی، مؤنث ایک جیسی ہے. ذالکا دل کا، دل کا جمع بھی اولائکا، اولائکا. جی الحمدللہ. اور اس کے اشارے کیسے ہیں؟ نہ تو ہوا کی طرح ہے نہ انتا کی طرح ہے، یہ ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان میں آ جائے. ٹھیک ہے، 45 ڈگری پہ ہم نے اشارہ کرنا ہے کہ وہ جو دور چیز ہے اس کی بات کر رہے ہیں ہم، مذکر کی. اور جب ہم تلکا کہیں گے تو ہم مؤنث کی بات کریں گے. اچھا جی، اس میں ہم نے سیکھے افعال. افعال میں کیا سیکھا ہم نے؟ فا عین لام، فا تا ہا، ناس ضا را دو را با، یعنی کہ 3 جب حروف تہجی کے حرف ہم جوڑتے ہیں تو ایک حرف بنتا ہے. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعلا، فتح، نصر، ضرب. ٹھیک ہے کیا؟ زیادہ تر 3 حروف پہ ہوئیں گے. اب اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ فعل ماضی جو ہو گیا، جس میں شک نہیں ہے، شک کی گنجائش ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا فعلا اس نے کیا، فتح اس نے کھولا. لیکن جب ہم مضارع پہ آئے ہم نے کہا یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یعنی کہ حال کا معنی بھی دے گا اور مستقبل کا بھی. یفعلو اس نے کیا، اسی طرح سے یفتح وہ کھولتا ہے، اس طرح سے ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اور مجھے لگ رہا ہے میں نے یفعلو کا اس نے کیا کہہ دیا، وہ کرتا ہے یا کرے گا. اس کے بعد ہم نے سیکھا فعل امر. فعل امر نے صرف حکم دینا. ٹھیک ہے، تو کر. ٹھیک ہے، افعل تو کر، افعلو تم سب کرو. اس میں حکم بھی ہے اور اس میں گزارش بھی ہے. گزارش کہاں ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اہدی، ہدایت دے نہ ہمیں. یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو حکم تو نہیں دیں گے، تو اس میں گزارش اور حکم دونوں پائے جاتے ہیں. یعنی جب بڑوں سے کہا جائے تو گزارش ہوگی اور جب چھوٹوں سے کہا جائے گا تو حکم ہاں دیا بالکل جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ. یہ بھی اچھا کانسیپٹ ہے یاد کرنے کے لیے. ہم کہتے ہیں پہلا سیٹ. یہ پہلا سیٹ اپنے ذہن میں ایسے بنا لے کسی چیز میں بڑا کام آئے گا. آپ سمجھے کوئی مسجد یا گھر ہے، اس کے 4 دروازے ہیں.
ठीक है। पहला दरवाजा हम कहते हैं फ़अला यानी कि फतह से, फ़अला रेफरेंस टेबल है, इसको जरा छोड़ के फतह पे आते हैं, ठीक है। फतह, इसके बाद मसरा, गौरबा, सामिया, इनका पहला पहला लफ्ज हमने ले लिया। फा बाब, इसके बाद नून बाब, दौद बाब, सीन बाब, ये अलग अलग कैसी होती हैं? तीन का माजी एक जैसा है, सामिया में माजी चेंज हो जाता है। इसी तरह से यस्माउ और यफ्ताहु, इनका मुदारे एक जैसा है, लेकिन यदरिबु और यंसुरु ये चेंज हो जाते हैं। तो ये चार हमारे सेट है। हम कहते हैं कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी नफरा, वरना मार पड़ेगी दौराबा, इसलिए सुन लो सामिया। इस फ्रेज को आप इस छोटी सी पोएम को याद कर लें ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। अच्छा जी, अब इसका पूरा टेबल जी, कोई सिस्टर कुछ पूछना चाह रही है? चले हम इसको कंटिन्यू करते हैं, कोई सवाल हो कि तो हम इंशाल्लाह एंड पर ले लेंगे। हमने कहा फ़अला, फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। तब्दीली कहाँ पर आई? हमने ये एक मिसाल ली थी कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है, उसकी दुम हमें नजर आ रही है, उस दुम पे तब्दीलियां कर लेनी है माजी में। फ़अल अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। फ़अलु, ये जो खास आप देखिए फ़अलु में वाव के बाद अलिफ लाजमी लगाया करें, ये जमा की निशानी है। अब ये जमा की निशानी है, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हो सकता है बाज़ अफ़आल ऐसे आ जाए कि उसमें अलिफ के बगैर ये वाहिद वाला सीगा बन जाए। तो ये जो वाव के बाद अलिफ है, ये आपने लाजमी लगानी है। हम टेबल कर लेते हैं यहाँ से जी। हम पहला टेबल सिस्टर समिया से करवा लेते हैं, कीजिएगा टेबल। फतह, उसने खोला। फतहू, उन सब ने खोला। फतहता, आपने खोला। फतहतु, मैंने खोला। फतहतुम, आप सब ने खोला। फतहना, हम सब ने खोला। हिया फतहत, उस औरत ने खोला। उस औरत ने खोला, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमने ये कहना है कि ये जो फतह है ये हमारा पहला टेबल है, ये हमारा दरवाजा है, ये हमारा फाबाब है। अब फातहा के वजन पर जितने टेबल आएंगे उनमें जेर, जबर, पेश, शद, मद वो बिल्कुल इसी तरह से आएगी जिस तरह से फतहा पर आती है, उसमें हमने कोई तब्दीली नहीं करनी। और फतहा फेल माजी की चाबी है। फतहा हमें पता चला, हमने पूरा टेबल बना लिया, नीचे पूरा खजाना खोल लिया। इसी तरह से जाला है, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना और जालत। मैं चाह रही हूँ कि जो के साथ है ना मुदारे के साथ, वो टेबल आपसे करवाऊं, क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं। तो क्या सामिया का करते हैं, सामिया। आबादा का भी थोड़ा सा चेंज है। सिस्टर फातिमा आप पढ़िएगा आबादा का टेबल। आबद उसने इबादत की, आबादा उसने इबादत की, अबद उन सब ने इबादत की। अबत्ता, आपने इबादत की। अबत्तु, मैंने इबादत की। अबत्तुम, आप सबने इबादत की। अबदना, हम सब ने इबादत की। या अबदत, उस औरत ने इबादत की। हाँ, चेंज कहाँ पर आता है? दाल और ताक करीबुल मुखारिज है, उनको बोलना इकट्ठे बोलेंगे। क्या करेंगे? दाल को बीच में से हजफ कर देंगे, हजम कर लेंगे और ताक की सीधी आवाज अबत्ता, अबद तुम, इसी तरह से अबद तुम, ये तीन अल्फाज हम इस तरह से बोल लेंगे। सिस्टर लाहिदा आप गौरबा का टेबल कीजिएगा। ज़रबा, ज़रबा उसने मारा। ज़रबो उन सब ने मारा। ज़रबता, आपने मारा। ज़रबतु, मैंने मारा। ज़रबतुम, आप सब ने मारा। ज़रबना, हम सब ने मारा। ज़रबत, उस औरत ने मारा। उस औरत ने मारा, औरत दरबत, ठीक है, साकिन हो गया। अच्छा जी, सामिया का टेबल थोड़ा चेंज है। सामिया का टेबल कौन करना चाहेगा? सर कोसर जी। सामिया, उसने सुना। सामी, उन सब ने सुना। सामिया का, आपने सुना। सामी तू, मैंने सुना। सामी तू, आप सब ने सुना। सामी ना, हम सब ने सुना। सामियात, उस औरत ने सुना। उस औरत ने सुना, ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी की तरह से आलिमा, इसी की तरह से आमिला, एक एक जैसे टेबल है, ठीक है। ये है हमारा जो खास एक आपने स्लाइड या एक तस्वीर है, इसको वॉलपेपर पे लगा लें ताकि, या आप इसको लिख के फ्रिज पे ऐसे लगा लें। इसको देखा करें कि फा बाब, नून बाब, दौद और सीन बाब
4 हमारे पास बाब हैं, 4 दरवाजे शोर आ रहा है। जिनसे गुजर कर जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उस टाइम में आप म्यूट कर लिया करें, जब आपसे मैं कुछ पूछूं तो फिर अनम्यूट करें ताकि सब लोग आसानी से सुन पाए। अच्छा जी, फतहा यफ्ताहु इफ्ताह, ये क्या है? फतहा यफ्ताहु इफ्ताह, ये हमारी 3 चाबियां हैं। फतहा की चाबी से हमने क्या सीखा? फतहा, फतहु, फतह, 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 फतहना और फतहत। और जब हमने सीखा यफ्ताहु, ये दूसरी चाबी है, ये मुदारे की चाबी मिली। इस चाबी से कौन सा खजाना खोलेंगे? यफ्ताहु यफ्ताहु ना तफ्ताहु अफ्ताहु तफ्ताहु ना नफ्ताहु और हिया तफ्ताहु। इसी तरह से जब हमने कहा इफ्ताह, तो ये फेले अमर की चाबी हमें मिली। इफ्ताह पूरा नीचे टेबल, क्योंकि इसमें टेबल छोटा हो जाता, हमने हुक्म या गुजारिश सिर्फ सामने वाले से करनी है, इसलिए जो गायब वाले थे ये खत्म हो जाते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो। इसी तरह से हम नहीं भी इसके अंदर ही सीख लेते हैं, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो। अब ये जो टेबल है फतहा, इससे मिलता जुलता मुदारे यफ्ताहु की तरह यस्मा हुए, लेकिन तब्दीली कहाँ पर आ गई? सामिया के शुरू में ही हम जब इस तरह के टेबल देखेंगे जहां पर दूसरे कलमे के नीचे जेर होगी। दूसरे कलमे से मेरा मतलब यह है कि पहला कलमा सीन, दूसरा कलमा मीम, तीसरा कलमा आइन है। अब ये जो दरमियान वाला है, यहाँ पर जब जेर आ गई तो उस टेबल को हम सामिया की तरह बना लेंगे। लेकिन जब हम देखेंगे फतहा, अब ये यफ्ताहु तो बनेगा लेकिन ये फातिहा नहीं होगा, ये इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम आते हैं नासौरा पर, अब ये जो नासौरा है इसमें तब्दीली आ जाती है, स्वाद पर पेश आ गई। ठीक है, नासरा यंसुरु उनसुर, जो तब्दीली आपने मुदारे में करनी वही तब्दीली आपके फेले अमर में भी आ जाएगी। जैसे दौराबा से यदरिबू, यदरिबू यानी कि दूसरे कलमे के नीचे जेर आ गई और वही जेर हम उठा के फेले अमर पे लेके जाते हैं, दौराबा यदरिबू इदरिब। ठीक है, अब ये जो हमारे सामने फतहा यफ्ता, तो ये लिखी ना आपके पास जितने अल्फाज हैं, ये अपने पास ही एक एक चाबी के पास खजाना है, पूरा पूरा खजाना। वो हमने कैसे सीखा? हमने पूरे पूरे टेबल बना लिए। अब ये जो फाला का टेबल है, हम कहेंगे हमने फतहा का दरवाजा खोला। जब हम फतहा में अंदर गए तो अब जो तब्दीलियां फतहा के टेबल पर थी वो सारी की सारी तब्दीलियां हमने फाला पर अप्लाई करनी है। अपनी मर्जी से हमने कोई चीज चेंज नहीं करनी। जैसे यफअलु यफ्ताहु, बिल्कुल एक जैसा वजन। अगर हम कहेंगे तफ्ताहु तो उसी तरह से तफअलु कहेंगे। ठीक हो गया जी। अब ये पूरा टेबल बगैर तर्जमे के कोई सिस्टर पढ़ेंगी। अच्छा जी, बाकी सारे मैं पढ़ दूं? चले पढ़ लो। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलनहा उस औरत ने फ़अलत, किया। ठीक है, फ़अलत फ़अलत, सॉरी फ़अलत हा नहीं फ़अलत लगाएंगे, फ़अलत। जी सॉरी। कोई वो बात कर नहीं। अच्छा, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हो, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हो, नफ़अलु हम सब करते हैं, नफ़अलत वो औरत करती। अच्छा जी, यहाँ पर आप थोड़ा सा भूल गई हैं। हमने कहा था अंत तफ़अलु हिया तफ़अलु, जो सामने वाले के लिए सीगा वही हम मुअन्नस के लिए यूज करेंगे, हिया तफ़अलु। ठीक है, इसको पक्का या कर लें, हिया तफ़अलु तफ़अलु, अंत तफ़अलु हिया तफ़अलु। अब इसके बाद ये फेले अमर किधर पे आ जाइए। ये इधर लगाना है, ये नफ़अलु पे अगर औरत का आएगा आगे तो फिर उधर लगाना है। नहीं, या नफ़अलु से तफ़अलु नीचे हम एक और सीगा बनाते हैं ना औरत का मुअन्नस का, जैसे हम कहते हैं फ़अलत माजी में, तो इसी तरह से हम जब हम मुदारे पे आएंगे हम तफ़अलु कहेंगे। जी ठीक है, आप इसको देखिए, जैसे यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना, नफ़अलु फिर हिया तफ़अलु, नफ़अलु के बाद हिया तफ़अलु। ये जो नफ़अलु और अफ़अलु ये अपने लिए एक जैसा सीगा यूज हो जाता है। ठीक हो गया। अब इफ़अल अमर पे आ जाएंगे। इफ़अल इफ़अलु ला तफ़अल ला तफ़अलु फ़ाइलुन मफ़ऊलुन फ़ेल फ़िअलुन,
इशारे भी किया करें। जब आप ये इशारे 2 करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। सॉरी, ये सिस्टर रिहाना ने अभी किया था ना? जी जी। जी जी अब आप जी जी मैंने हाँ, अब आप ऐसा करेंगी, अब आप इसको असेसमेंट के लिए कर लें कि आप जैसे यफ्ताहु, तफ्ताहु, इसी तरह से यंसुरु, तंसुरु, ये सारा टेबल आप लिख लीजिएगा, ठीक है? हर जी, ठीक टेबल है। का आप माजी, ये जो सॉरी मुजक्कर वाला भी उठाएं सीगा और मुअन्नस मुअन्नस वाला भी, ये आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक हो गया? ये हमने इंश- क्यों याद करने? इंशाल्लाह। क्योंकि ये कुरान पाक के अल्फाज हमने बहुत से इसी तरह से पढ़ने, हमने समझना है इनको कि ये बात कहाँ, और हमें पता है कैसे चले, हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि ये मुअन्नस की बात हो रही है या ये सामने वाले की बात हो रही है। मैम आप क्या इंशाल्लाह। फाअला की जगह क्या लगाएं? फ़अला, फ़अलत, ये फ़अलत। आपके सामने भी आ गया, फ़अला, जी फ़अलत। अच्छा, ये आप समझ लें जैसे हम कहते हैं, अब इससे मिलता जुलता मेरे जहन में कोई नाम आ नहीं रहा, जैसे अब उर्दू में तो हम कहते हैं निगहत, औरत, रिफ़त, ठीक है? ये जो ता साकिन होती है ना, औरत, इसी तरह से हम फ़अला से फ़अलत, नसरा से नसरत, ये इसी तरह से चलते रहने हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आनी। अल्फाज चेंज होंगे, जो मुअन्नस का सीगा उस पे ता ही लगनी है और वो साकिन होके ही लगनी है, ठीक है? लेकिन जब हम मुदारी पे आएंगे तो यफ़अलु तफ़अलु, यफ़अलु तफ़अलु, इसको थोड़ा सा आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। फिर ऐसे हो जाता है कि हमारे मुंह से खुद ब खुद इन चीजों में एंड पे जो आखिरी इसमें हिया तफ़अलु, हिया तंसुरु, हिया तदरिबु, ये इसी तरह से हम उसको अदा कर लेते हैं। अब इसको ऐसे पढ़ के देख लें, हुआ हिया ना भी लगाएं। जी सिस्टर रेहाना, आप ही इसको कीजिए, ठीक है? अच्छी तरह से आइडिया जी हो जाएगा आपको। जी माजी से न- शुरू करें। हुआ हुआ फ- हुआ फतहा, हिया फतहत। हुआ नसरा, हिया नसरत। हुआ दरबा, हिया दरबत। हुआ सामिया, हिया सामियत। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम मुदारे पे करेंगे, ऊपर इशारा थोड़ा सा। हुआ यफ्ताहु, हिया तफ्ताहु। हुआ यंसुरु, हिया तंसुरु। हुआ यद्रिबु, हिया तद्रिबु। हुआ यस्माउ, हिया हिया तस्माउ। ये थोड़ा इंशाल्लाह सा आप ऊपर। आपको ये भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। जी जज़ाकिल्लाह खैर सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सिस्टर फातिमा अब फतहा का टेबल करेंगी। सिस्टर आप ट्रांसलेशन ना करें, ठीक है? फतहा का हमें पता चल गया, इसका माना खोलना है। आप ऐसा करके टेबल की रवानी के लिए इसको रवानी से पढ़ें, तर्जुमा के बगैर। फतहा, फतहा, फतहु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहत। यफ्तहु, यफ्तहुना, तफ्तहु, तफ्तहु, हिया तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहुना, नफ्तहु। अच्छा रुके, अब जो भी पढ़ेगा ना, हम तफ्ताहु वाला सीखा एंड पे पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे हमने रवानी से पढ़े हम वैसे ही पढ़ेंगे। यफ्तहु, यफ्तहुना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहुना, नफ्तहु, हिया तफ्तहु। इफ्तह, इफ्तहु, ला तफ्तह, ला तफ्तहु, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। फतहुन, फतहुन नहीं, फतहुन, फतहुन, फतहुन। फतहुन, ठीक है? फातहा जी। और इसी तरह से फतहुन, थोड़ा सा फर्क है इसमें। ठीक होगा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर समिया, आप ये वाला नफरा वाला कर लीजिए। नसरा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। नसरत, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु, हिया तंसुरु। उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु। नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। नसरुन, नसरुन का माना क्या होगा? मदद करना, ठीक है? अब दौराबा, एक एक टेबल हम कर रहे हैं, हर अबवाब में से दौराबा का हमने किया ही सिर्फ एक है। हम 4 दरवाजों में दाखिल हो रहे हैं और दरवाजे वाला टेबल ही कर रहे हैं, ठीक है? अब दौराबा का सिस्टर जवेरिया करेंगी। दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबता, दरबत, दरबता, दरबतु, दरबतुम, सिस्टर हम उसी दरबना। रवानी से करेंगे, ये जो मुअन्नस वाला एंड पे करेंगे, ठीक है? दौराबा से फिर शुरू करें। ठीक है। दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना, दरबत। यदरिबु, यदरिबूना, तजरिबु, सॉरी, अजरिबु। मेरे इशारे गड़बड़ हो गए।
तजरिबु, अजरिबु, अजरिबु, तजरिबूना, नजरिबु, तजरिबु, हिया हिया तजरिबु, तजरिब, ठीक है। इजरिब, इजरबू, ला तजरिब, ला तजरिबू, दारिबुन, मजरूबुन, ज़रबुन। अच्छा जी, मदरूबुन किससे मिलता जुलता लग रहा है? मजलूम, हाँ जी, मासूम, ठीक है। मासूम, यहाँ से हमें ये याद रहेगा कि हमने ये मफऊल ऐसे बनाने हैं, मफऊल का वजन है, ठीक है। मदरूब, मजलूम, मंसूर, ये सारे एक ही जैसे बनते हैं। अच्छा जी, अब ये एक थोड़ा सा टेबल चेंज है, इसमें माजी चेंज है। ये कौन पढ़ेगा? सिस्टर नाहिदा, आप इसको कर लीजिए। समिया, समियो, समिया, समेता, समेतो, समेतुम, समीना, हिया समियत। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ, हिया तस्माउ। इस्मा, इस्माउ, ला तस्मा, ला तस्माउ, सामिउन, मस्मूउन, समउन। सामून। अच्छा जी, ये हमारे टोटल ना 11 टेबल हैं। अब ये जो 11 टेबल है, इसमें से हमने देखने एक एक सेट पर कौन से हैं। ठीक है सिस्टर, आपने माशाल्लाह अच्छा टेबल किया, प्यारा टेबल किया कि रुके बगैर आपने कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने ये पहचान भी याद रखनी है ताकि हमें पता हो। जैसे मैं अगर अभी आपसे पूछूं कि फा पर हमने कौन कौन से टेबल, फतहा वाले कौन कौन से टेबल किए हैं? फतहा, जआला, फ़अला। फ़अला। और बाब नून से नौसरा जैसे कौन से हैं? आबदा, दौराबा, नहीं दौराबा नहीं, हाँ, दौराबा आबदा। का अलहदा दरवाजा, ठीक है, फिर वो माइंड कर जाएगा, ठीक है। नौसरा, नसरा, आबदा, अबदा, खलका, खलका और ज़कारा, ज़करा, ठीक है। इसी तरह से बाब सीन पर कौन कौन से किए? अलीमा, अमीला, हाँ जी, और सामिया, सामी। ठीक है, 3। अब ये चीज हमने याद रख लेनी, सच्ची पक्की याद रखे। क्यों? क्योंकि ये पूरे कुरान पाक में इसी तरह से टेबल बनाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि ये एक पूरा टेबल, पूरा का पूरा टेबल आपको कुरान पाक में से मिले। इसमें से हो सकता है कि जैसे सामिया वाले में से 4 सीगे आ गए, यस्माउ वाले में से 2 आ गए, और कभी कभी हो सकता है सिर्फ माजी का एक आ गया, बाकी ना आए। लेकिन ये जो तब्दीलियां हैं ये इसी तरह से आएंगी। इसका फायदा और कहाँ हो सकता है? अहादीस में हो सकता है ये अल्फाज यूज हुए हो, और ये भी हो सकता है कि हम अरबी जुबान सीखें, कोई लुगत वगैरह, या हम कोई अरबी का कोर्स करें, तब हमें ये सारा पता हो कि अगर यस्माउ सामिया है तो यस्माउ बनेगा। ये 4 बाब है, 2 मजीद है, वो इंशाल्लाह हम अगले कोर्सेज में सीखेंगे। ज्यादा ये 4 अबवाब पर, इन्हीं औजान पर कुरान मजीद के अल्फाज आए हैं, तो इसीलिए हम 4 अबवाब ज्यादा सीखते हैं। और ये हमारी 6 चाबियां। जी जी सिस्टर, कुछ ज़रबा, कहा? ज़रबा किधर, फिर ज़रबा किसमें और आएगा? अभी अभी हमने सिर्फ एक किया है। हम ऐसा अच्छा, करेंगे ना, ये जो अब हमारा फाइनल हो जाए, कल फाइनल क्विज हो जाएगा ना, हम ऐसा करेंगे, हाँ जो जी, बुक के एंड पर है ना कुछ पेजेस, अब जिन्होंने तो पीडीएफ प्रिंट करवाया हो सकता है उनके पास ना हो, मैंने आपको एक दिन पहले भी दिखाया था, जो बुक के एंड पर है ना, ये वाले हम सारे इनके कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, अब आप देख पा रहे हैं, हाँ जी, ये बाप बहुत पर जितने है ना, ये हम सारे कर लेंगे इंशाल्लाह। और हम ऐसा करेंगे ना कि फ्री नहीं बैठेंगे, हम थोड़ा थोड़ा सा काम कर लिया करेंगे, ज्यादा नहीं तो रोज का एक टेबल भी करे तो टेबल हमारे पक्के रहेंगे, ठीक है। बाप बहुत पर भी काफी सारे टेबल है, सबसे ज्यादा टेबल मैम बाप बहुत पर होते हैं। वो सेट जो है 3 सेट, वो अब तीनों सेट बता दी थी। एक सेट तो फाला, फतहा, जाल है ना, तो दूसरा हाँ, सेट कौन सा? दूसरा सेट आप नासरा से शुरू करें। नसरा, रुकिए, सिस्टर ये अबदा, सेट की स्लाइड नहीं आ सकती? अच्छा ये इसकी स्लाइड आपने ना असल नसरा, में मिस किया, ये स्लाइड तो इसकी है, 1 मिनट। अच्छा, अबदा, आप चाह रहे खलक। हैं कि पूरा पूरा सेट हो? होगी हाँ जी, आप मुझे सेटों में जो यानी तीन मेंबर्स है तीन ना वो तीन बता तीन दें। का जो सेट है ना वो थोड़ा सा। अच्छा, ये यानी मैं यहाँ पर हम इसकी जब कवर करते हैं, क्लास कंप्लीट होती है, मैं इसको बोर्ड पे लिखती हूँ, जो आपके सेट है मैं 4 सेट के नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, फिर हाँ आप जी, उसका उनके मेंबर्स स्क्रीनशॉट ले बता लीजिए। दें। ओके, जज़ाकल्लाह। ये ठीक है, जैसे पहला सेट आला, फातहा, जाआला, इसी हाँ तरह जी, दूसरा सेट बनेगा वो नासारा, वो खालाका, 9 जाकारा। और आबादा, ठीक है। तीसरा जो हाँ जी, सेट होगा वो हम सिर्फ, अभी हमने सिर्फ दौराबा किया, ठीक है, और है
لیکن ابھی QC1 میں ہم نے صرف ایک کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم کریں گے انشاءاللہ, ہم کریں گے کہ اس پر جتنے بھی اس وزن پر آئیں گے QC2 میں بہت سارے آ جانے, پھر اتنے ہوں گے ٹیبل کے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا بنائیں کون سا چھوڑیں. ٹھیک ہے, جب ہم لوگ QC1 میں تھے ہمارا بھی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ ٹیبل ہمیں بتائیں, ہم اس پہ ٹیبل بناتے تھے. اور QC2 میں پہنچتے یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں یہ سارا جب پورے کے پورے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے, جیسے ہمیں پتا ہے کہ فعل یفعل افعل یہ افعال ہے, فاعل مفعول فعل یہ اسماء ہے, پھر ہمیں دوبارہ سے یہ سوچنا نہیں پڑتا, یہ سارا ہمیں پتا چل جاتا ہے. پھر ہم بس ایک روانی سے ٹیبل ایک شروع کرتے ہیں, پورا کا پورا ٹیبل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہم نے کہا تھا اسم فاعل, اسم مفعول اور اسم مصدر, اس میں کیا ہو سکتا ہے, یہ الفاعلو, ٹھیک ہے, الفاعلہ, اسی طرح سے الفاعلی بھی ہو سکتا ہے, اور اسی طرح سے ان کے مؤنث بھی بن سکتی, ان کی جمع بھی بن سکتی ہے. اور یہ ایک ایک سے کافی سارا پورا لمبا چوڑا ٹیبل, آپ فاعل لکھ کے جیسے لکھیں فاعل فاعلن فاعلن, 3 تو سیگے یہ بن گئے. پھر اس کے بعد لکھیں الفاعلو الفاعلہ الفاعلی, 3 مزید بن گئے. پھر آپ لکھیں فاعلون فاعلین فاعلین, اس کے بعد اب اسی طرح سے فاعلاتن, ٹھیک ہے, اب فاعلاتن, اسی طرح سے الفاعلاتو. اس طرح سے آپ کرتے کرتے پورے پورے ٹیبل بنا سکتے ہیں. یہ 6 چابیاں ہیں, شارٹ ٹیبل ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ہمارے پاس جتنے بھی افعال آئیں گے ہم 6 چابیاں زیادہ تر بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل, جیسے ہم کہتے ہیں فتح یفتح افتح فاتح مفتوح اور فتح. اس بات کو آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ 3 اسماء ہے اور 3 افعال ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کو بتا بھی دیا, یہ آپ کے ساتھ سلائیڈ بھی شیئر ہو جائے گی. پھر آپ اس کو اور اچھے طریقے سے دیکھیے گا کہ فاعل اور مفعول ان کی بنانی ہے, مصدر کی نہیں بنانی. ٹھیک ہے, مصدر چینج بھی ہو جاتے ہیں, کچھ مصدر ہوتے ہی مؤنث ہیں, ٹھیک ہے, کچھ مذکر ہوں گے. اس میں آپ نے کوئی واحد جمع والے اس چکر میں نہیں پڑنا. ہاں یہ کر سکتے ہیں الفعل الفعلا, اسی طرح سے الفعلی, ال لگ سکتا ہے, تنوین لگ سکتی ہے, لیکن یہ کہ اس کا ہم نے مذکر مؤنث یا واحد جمع پر نہیں جانا. یہ 6 چابیاں آ گئی. ٹھیک ہو گیا, اس کو آپ جیسے نقرا ینصر انصر ناصر منصور نصر اسی طرح سے یاد کر لیجئے گا تاکہ ہمیں 6 چابیاں اچھی طرح سے آتی ہوں. اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی پریکٹس کی تھی, یہ آپ کو اس میں نہیں آئے گا, کوئز میں اس کے متعلق نہیں, یہ آپ کو ہوم ورک میں آیا تھا. کوئز میں اس طرح کے کویسچن کوشش کی جاتی ہے کہ نہ دیے جائیں, لیکن یہ اسی طرح سے جیسے ہم کہیں حل مغفرہ زیدن, کیا اس نے مدد کی زید کی. اب ہے حل نصرتا, اب یہ ہے حل نصرتا, کیا آپ نے مدد کی اس کی. اب ہم کہیں گے حل نصرتا زیدن, کیا آپ نے مدد کی زید کی. اب یہ جو زید ہے ہم نے اس کو ہو بنا دیا. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے, تا کا جواب تو سے کر دینا, باقی اسی طرح سے آنسر آ جائے گا. نعم نصرتو ہو, جی ہاں میں نے مدد کی اس کی. یہ اس کون ہے, ہم نے زید کو پڑھا ہے نا, زیدن, یہ زیدن کا ہم نے زیدن بنایا. اب یہ جو زیدن تھا اس کا ہم نے اس بنا دیا کہ اس کی مدد کی. کیا آپ نے اس کی مدد کی, جی ہاں میں نے مدد کی اس کی. ٹھیک ہے, تا کا جواب تو سے, تم کا جواب نا سے, باقی ضمیر اسی طرح سے پڑھی جاتی ہے. اچھا جی, انصر ہو, مدد کر اس کی. اب ہم جواب میں کیا کہیں گے, انصر ہوں, میں مدد کرتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ مضارع ہے, یہ مضارع ہے. یہ ابھی ہم نے مضارع کا سارا ٹیبل کیا نا, یہ مضارع ہے. مضارع کے ساتھ ہو ضمائر جڑ کر آ گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہاں پر ہمارا کورس کمپلیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا, ہم نے جو شروع میں ہم نے سوچا تھا, ہم ایک ہدف بنایا تھا, ٹارگٹ کہ ہم نے 232 الفاظ سیکھنے, الحمدللہ ہم نے سیکھے. قرآن مجید میں 41,111 مرتبہ آئے. آپ مصحف کھولتے ہیں, بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کا آپ ترجمہ کر لیتے ہیں. اس کا پورا ترجمہ نہیں کرتے تو ہمیں وزن کا تو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے مظلوم کی طرح مغضوب ہے, ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھا یہ بھی کوئی کسی ٹیبل کا یہ مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اس وزن پر آ رہا ہے. اسی طرح سے ہم انشاءاللہ ملاتے بھی جائیں گے اور انشاءاللہ سیکھتے بھی جائیں گے. الحمدللہ
अच्छा जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अच्छा जी, यहाँ पर अभी हम खत्म नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको, हम रिकॉर्ड भी कर लेते ताकि फिर आपको इंशाअल्लाह इसमें याद भी रह जाए। ठीक है, मैं बोर्ड शेयर करती हूँ, अब हम उस पर बाकी चीजें सीखते हैं। सिस्टर कल क्विज कितने बजे आएगा? क्विज आप उसी टाइम पे 6:30? 6:30 पे आ जाएगा, ठीक है ना? 6:30 जी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 9 बजे तक खुला रहे। आगे चूंकि रमजान है तो कोशिश हम कर रहे हैं कि सब लोग दे लें, लेकिन अगर किसी को कोई बहुत मजबूरी है तो फिर ये कि एक आधा दिन लीजिएगा, ज्यादा दिन ना लीजिएगा, ताकि रमजान से पहले पहले आपका रिजल्ट भी बना लिया जाए। कोशिश करें कि अपनी वर्क बुक भी जमा करवा दें। एक काम और कीजिएगा, जिन सिस्टर्स ने वर्क बुक अपनी जमा करवा दी है वो आप ऐसा कीजिएगा कि मुझे आप लोग सारे अपना अपना नाम भेज दें कि आप जमा करवा चुके हैं, चाहे आपने सिस्टर हफ्सा को जमा करवाई है या मुझे अपने नाम जरा काइंडली मुझे बता दीजिएगा। मैम वो सिस्टर मैं मेरी क्या पूछूं? कजन भी ये कोर्स में ना उसने एडमिशन कर लिया हुआ है, लेकिन उसके ससुराल में ना उसकी नंद की बेटी की शादी है उस कल, यानी के वो वहाँ बहुत बिजी होगी, तो वो मेरा ख्याल है नेक्स्ट पूरा पूरा वीक ही तकरीबन ना वो बिजी है, तो वो फिर तो क्विज उनसे, किस हाँ तरह जी, देगी? हाँ उनसे कहिएगा कि वो मुझे बता दें, राब्ता कर लें मुझसे, जब वो फ्री हो जी जाएंगी तब मुझे मैसेज कर दें, पर इंशाल्लाह हम उनसे तब ले लेंगे। ये जेन्युइन चल प्रॉब्लम है ना, ये पता है कि ये मसला है, ठीक है? जी जी तो जो आसानी से दे सकते हैं वो तो आप जरूर दें, क्योंकि जो सबके साथ एक साथ क्लास में देने का मजा भी अलग होता है, और ये कि आप जब आप देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं पूरी तवज्जो के साथ, आपने पूरा हफ्ता पढ़ा हुआ है, 2 आपकी रिविजन भी होगी, अब आपका बेहतरीन पेपर होगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो क्या जी, आप उनसे उन सिस्टर का नाम क्या है? शाहिदा यासीन। अच्छा, आज उनकी कॉल आई थी मुझे, ठीक है, तो वो फिर मुझे कांटेक्ट कर लें आज की क्लास के जी लिए। मेरे साथ उन्होंने माजरत भी की थी। जी जी, आज भी उसने क्लास नहीं ली, कल ठीक, की भी नहीं ली थी उसने क्लास, हाँ इसीलिए क्योंकि हम उसके घर में रिकॉर्डिंग ही, भेज देते। जी जी, घर में ही उसका सारा सिस्टम चल रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैम वो मैं आपसे कुछ पूछ लूं? जी जी, पूछिए। मैम कल के उसके के उसके है कि वो खुलासे जो थे, एक एक लाइन के खुलासे जी सूरतों के, वो जी, अगर आप दोहरा दें, सूरह असर का खुलासा, सूरह ठीक है। फातिहा का खुलासा, सूरह नसर का, इस तरह। अच्छा, बुक है आपके पास? जी बुक है। बुक है, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि बुक में आप कहाँ से मदद ले सकती हैं ये खुलासे वगैरह देखने के लिए। एक तो आप ये जो रिवीजन की स्लाइड्स मुझे बताइएगा आपके साथ शेयर हुई हैं या नहीं शेयर हुई, रिवीजन हुई की स्लाइड। एक तो हम रिवीजन शेर की स्लाइड आपके साथ शेयर कर लेंगे, उसमें से भी आप खुलासे देख सकते हैं। बाकी आप सूरा को पढ़ें, जब आप सूरा पढ़ते हैं ना, अब आप जैसे मैं कहूँ कि सूरा इखलास का क्या खुलासा हो सकता है, इसका खुलासा ये हो सकता है कि इसमें तौहीद यानी कि अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में बताया गया है, वहदानियत, हाँ जी। ठीक है? अच्छा जी, अब ये जो है सूरह अल अस्र, इसमें क्या है? इसमें ये कि इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे को बताया गया कि हक बात की तलकीन करनी है, ठीक है? सिर्फ अपनी इस्लाह काफी नहीं है, सबको साथ लेकर जी इज्तिमाई तौर पर साथ चलना है। सूरह फातिहा का खुलासा क्या हो सकता है? सीधे रास्ते की दुआ। अब सीधे रास्ते की दुआ में बुराइयों से बचने की भी दुआ हो जाती है और तमाम अच्छे उमूर वाली दुआ भी हो जाती है, ठीक हो जी। गया? अब ये हमारे 4 सेट हैं, ठीक है? इनके नाम क्या है? फा, फातिहा, नून ना दौर सीन। और सीन, ठीक है? ये हमारे अबवाब हैं, ये 4 के 4। आप इनको ये भी कह सकते हैं कि आपने जैसे कोई सांचे बनाए हैं केक वाले, ठीक है? आपने एक सांचा बना दिया गोल, वो उसका नाम आपने फातिहा रख लिया, एक और सांचा आपने कोई स्क्वायर शेप में ले लिया, 4 अलग अलग सांचे हैं। अब आपने बैटर तो चेंज करना, उसमें डालते जाएं, अब उसकी लेकिन जो शक्ल होगी वो वही बनेगी, अंदर से टेस्ट चेंज होता जाएगा, यानी कि माना बदलते जाएंगे, शेप वही रहेगी। जैसे सही। फतहा वाला अगर गोल था तो फतहा पर के वजन पर आने वाले जितने भी केक हैं आपके सारे गोल ही बनेंगे। अगर नौसरा का स्क्वायर था तो सारे के सारे
आप चाहे चॉकलेट बनाएं, स्ट्रॉबेरी बनाएं, जो भी वनीला वगैरह बनाएं, टेस्ट तो चेंज हो जाएगा, यानी कि माना तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो शेप नहीं बदलेगी। अब ये जो शेप है ये क्या है, ये हमारी जेर जबर पेश है, ठीक है। 4 अबवाब में फतहा पर आया है फ़अला और जअला, जअला। चले जी नौसरा पे बताइएगा। अबदा, अच्छा जी, मैंने कुछ और लिखना शुरू कर लिया, ठीक है क्या जी। अबदा, खलका, आबादा, खलका। अच्छा जी, दोराबा पर हमने और कोई भी टेबल नहीं किया, तो हमने छोड़ दिया। और सामिया पर कौन सा किया? अलिमा, अलिमा, आमिला, और आमिला। ये हमारा, ठीक है, ये 4 सेट हो गए। फा का सेट, नून का सेट, दौद का सेट और सीन का सेट। यहाँ अगर किसी को मेरी लिखाई गंदी मंदी से समझ ना आए तो हम इसको दूसरी तरह से उसमें भी लिख लेंगे, ठीक है, लिख के भी मैं इसमें डाल दूंगी ग्रुप में, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। और ये क्यों जरूरी है, ये सेट अलग-अलग, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। फतहा और नौसरा में क्या चेंज है, कोई बता सकता है? कोशिश करनी है, ये आपका टेस्ट या क्विज नहीं है, कोशिश कीजिए। फतहा और नौसरा में क्या? माजी में पेश आ जाता है, मुदारे, मुदारे, ठीक है, मुदारे में, मुदारे में। देखिए ना, आसान तरीका, फतहा फतह, फतहता फतहतु फतहतुम फतहना, ठीक है, एक जैसा है। नसरा नसरु नसरता नसरतु नसरतुम नसरना, माजी एक जैसा है। यफ्तहु यंसुरु, यहाँ तब्दीली आती है, ठीक है। माजी की तब्दीली सिर्फ सीन बाब में है, बाकी जो तब्दीलियां वो सारी उसमें मुदारे में आ जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। सिस्टर, यानी ये जो फतहा के नीचे फ़अला और जाला है, इसका मुजारे सबका सेम होगा। हाँ जी, बिल्कुल और बिल्कुल। नासरा, ज़करा, अबदा, खलका, इनका मुजारे सेम होगा। यानी आप बना क्यों नहीं रहे? आप फतहा बनाएं। फ़अला से आप कहती मुख्तलिफ हैं होगा। फतहा से यफ्तहु, कहती हैं फ़अला से, फ़अलू, जअला से, फ़अला से यफ़अलू, ठीक यफ़अलू, है, जअला से। यजअलू, अच्छा, अब हम कहते हैं नौसरा से यंसुरु, अब ज़कारा यंसुरू, से, जी, यंसुरू, स्वाद पे पेश आएगा। ज़करू, रा पे पेश आ जाएगा। अबदू, दाल पे पेश आ जाएगा। खलकू, यअबुदु, खलका यखलुकू, से उस पे पेश आ यखलुकु, यखलुकू, काफ पे पेश आ जाएगा। ठीक है, आखिरी वाली लफ्ज पे पेश आ जाएगा। आखिरी में तो पेश सब पे है, देखें, यफ्तहु आखिर में पेश, यंसुरु। तब्दीली जो आती है ना, मैं मेरा ख्याल आपको समझा नहीं पाई, रुकिएगा मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारा, दूसरे वाले पे आएगा तब्दीली, दूसरे ये वाले हमारा पे आएगी। पहला यज़कुरू, ये हमारा पहला कलमा है, ये हमारा दूसरा कलमा है, ये हमारा तीसरा कलमा है, ठीक है। अब ये जो या लगती है ना, जैसे यफ़अलू, ये जो या है ये तो निशानी है मुदारे की, मुदारे ठीक है। जी। अब ये जो है ना यफ़अलू, यंसुरु, आप इस या को छोड़ दें तो ये दूसरा लफ्ज बनता है। पहला नून है, इसको हम यहाँ पे लिख के रखते हैं, पहला नून है, दूसरा स्वाद है, तीसरा रा है, तीसरे पे पेश ही आती है, ठीक है। इसमें जो जेर जबर चेंज होगी वो अभी हमने नहीं पढ़ना, अभी हमने सिर्फ इसका पेश ही पढ़ना है। तब्दीलियां आ जाएंगी, यफ़अलु, यंसुरु, ठीक है, और यदरिबु, यज़कुरू, यदरिबु, ठीक है। यअबुदू, जी, यखलुकू, दूसरे वाले जो है उसके ऊपर हाँ, तब्दीली दूसरा जो हमारा हर्फ होगा ना उस पे तब्दीली आती है, पहले वाले पे या आखिरी पे इस तरह से नहीं, क्योंकि सबने या से शुरू होना है, यफ़अलु। इसी तरह से जब हम सामने वाले पे जाए तो सबने ता के ऊपर जबर होगी, उसी तरह से एक जैसे बनने, ठीक है। अभी हमारी तब्दीलियां आइन कलमा पर है, फ़अला के आइन यानी कि दूसरे कलमे पर हमारी तब्दीलियां होनी। ठीक है, 4 सेट, अब आपने इनको भूलना नहीं है।
جی جزاک اللہ، اب سمجھ آ گئی ہے. مزید آتی جائے گی انشاءاللہ، جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے یہ مزید سمجھ آتی جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. میم یہ سمیع کا یسمعو ہوگا نا؟ ہاں جی، یہ یفتح کی طرح ہوتا ہے، تبدیلی ماضی میں صرف تبدیلی سامیہ پر ہے. اچھا قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی. نصر نصارہ ورنہ مار پڑے گی. اس سے کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ سوری پڑے گی یعنی کہ نقصان ہوگا. عذاب. بالکل بالکل. اس لیے سن لو. سامعہ. اللہ کی بھی سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنو. بالکل بالکل. ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن اور سنت سے. یہ تو بات پکی ہے. یہ میں آپ کے ساتھ ویسے بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو یہ اچھا سا یاد بھی ہو جائے. اچھا اب آپ کون سی سسٹر تھی جو کہہ رہی تھی کہ مجھے لاسٹ پہ جو کوشچن ہوتی ہے نا اس پہ مشکل آتی ہے؟ آپ ایسا کریں کوئی ہوم ورک کھول کے اس میں سے مجھے بتائیں تاکہ میں ادھر لکھوں اور اس کو ہم تھوڑا سالو کریں. پھر انشاءاللہ آپ بھی نماز پڑھیں، میں بھی نماز پڑھوں گی. ہمارے یہاں پر عشاء کی اذان ہوگی. سسٹر تدارس کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک دوسرے کو سکھانا. تدارسا جیسے ہم نے کہا تواصو، ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کیا کرو؟ وصیت کرو، حق بات. تدارسا اس کے انشاءاللہ ہم نے پورے یہ دراصل پڑھنے. یہ دراصل سے نکلا میرا خیال ہے. دراصل ہاں جی بالکل، یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تھوڑی سی آگے کی باتیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول ہے. ابھی اگر ہم اس کو دیکھیں گے نا، ابھی ہم اتنا یاد رکھ لیں گے کہ وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کرو، یعنی کہ ایک دوسرے کو جو بات کرنی اس میں یہ تا والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. وہ سسٹر میری سسٹر وہ کر رہی ہے 444 والے میں نا، سر اجاز کے پاس. اس کا کل ہوم ورک آیا ہوا تھا تو اس میں نا مطلب انہوں نے تواصو والی وہ کون سی صورت ہے 15واں لیسن تھا شاید انہوں نے پڑھا. ٹھیک ہے. تو اس میں نا اس کا ایک کوسچن آیا تھا تدارس کا نا مطلب، تو مجھ سے پوچھ رہی تھی تو میں نے کہا اس کا تو مجھے خود بھی نہیں پتا، ابھی ہم ایک نے بھی دوسرے نہیں کو یہ پڑھا. سکھانا. جی ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو پڑھانا. یہ نا یہ جو اس ٹائپ کے کوشچن ہے یہ آپ سے QC 3 میں پوچھے جائیں گے، 2 میں بھی نہیں پوچھے جائیں گے. اچھا اس کے لیے پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں آیا ہوا تھا نا ہوم ورک میں عادت ہے کیونکہ ہم یہ تھوڑا تھوڑا سا اس کو پڑھ چکے ہوتے ہیں. آپ 15A لیسن کھول لیں، اس میں دیکھیں تھوڑا سا انہوں نے بتایا ہوگا اس میں. اچھا جی سسٹر یہ 15 نہیں ہے، سوری، سورہ عصر میں دیکھنا ہے، سورہ العصر میں. اچھا اس میں بتایا ہوا ہے تدارسو، ایک دوسرے کو پڑھایا. ٹھیک ہے، تواصو کی طرح. اب ہو سکتا ہے کہ جب سر نے اس کا بنایا ہوم ورک تو اس میں انہوں نے کہا ہو کہ آپ نے یہ پوری سلائڈ تو یقیناً پڑھی ہوئی ہے، سمجھا ہوا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں بتاتی ہوں. پیج نمبر 90 پر آ جائے، وتواصوا کنچ تدارسوا لکھا ہوا ہے. جہاں بھی یہ تا والا ایلیمنٹ ہوگا اس میں ایک دوسرے والا آ جائے گا. مطلب جیسے ہم نے ایک اور بھی سیکھا ہے، علامہ، اس نے سکھایا. اور جب ہم کہیں گے تعلم، اس نے سیکھا. اب یہ سیکھا اور سکھایا صرف ایک تا لگی اور معنی چینج ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہے انشاءاللہ، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ. اگر ہم پہلے سٹیپ سے سیدھا ہی تیسرے چوتھے پر ذرا چلے تو جائیں گے، جا سکتے ہیں. بچپن میں مٹرائیاں بھی کی ہوئی ہیں لیکن مشکل ہوتا ہے نا. جی دوبارہ پوچھیے گا. کون سا پیج بتایا آپ نے؟ پیج نمبر 90 پہ آئیے گا. 90 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی
اور ایک دوسرے کو وصیت یا تلقین کی صبر کی اس میں نیچے انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے تدارسو ایک دوسرے کو پڑھانا ہوتا ہے نا، ایسے تواصل ایک دوسرے کو، ہمارے جس طرح پاس ہم نا اپنے قرآن مجید ہے تو اس میں نا یہ نہیں ہے. 87 پیج نمبر 87 ہے نئی اچھا بکس آپ میں. لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہیں بک نا، میرے پاس جو میں نے QC1 کیا تھا میرے پاس وہ والی 87 ہاں جی. ٹھیک ہے. ہاں آپ اپنے آپ کی ویسے بھی اسمال سائز میں اب یہ جو نئی بکس آئی تھوڑی تھوڑی چینج ہو جاتی ہے نا بکس. جی جی ہماری بک میں نہیں ہے یہ. اچھا ہو سکتا ہے کہ جیسے اب یہ اب سسٹر کنفیوز ہوئی نا تو ہو سکتا ہے کہ اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے نکال دیا ہو یہ، جی جی کیونکہ یہ شاید. ریلیٹ نہیں کر رہا نا، کیونکہ یہ ابھی تم نے QC3 میں جا کے پڑھنا ہے. جی ٹھیک ہے. وہ اسم فعل حرف والے پوچھ لیں اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے تو اس کا ہم ابھی سالو کر لیتے ہیں. میم ہم آپ کو وقت بے وقت میسج کر دیتے ہیں، اس کے کوئی لیے بات سوری. نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کو جس ٹائم میں فری ہوتی ہوں میں میسج دیکھ لوں میں جواب دے دیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. چاہے آپ رات کو 2 بجے کریں 3 بجے کریں، موبائل اس ٹائم تو جزاک ویسے اللہ. سائلنٹ پہ ہوتا ہے. کوئی نہیں، میسج آ جاتا ہے، میں صبح فجر کے لیے جب اٹھتی ہوں میں دیکھ لیتی ہوں، دن میں سسٹر کریں سورۃ رات میں. فلق کا کیا خلاصہ ہوگا؟ کس کا؟ سورۃ فلق. سورہ فلق. اچھا جی اس میں کیا کیا باتیں خاص باتیں سورہ فلق کی کیا ہیں؟ جی اس میں برائی، ایک برائی سے شر ہے، اور تین اس میں شر ہے اور ایک اللہ کی صفت ہے. ہاں جی 3 شرور اس میں جادو وسط وغیرہ یعنی کہ یہ چیزیں برحق ہیں اور ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی پناہ میں دینا ہے. میں آپ کے ساتھ یہ ریویژن والی ساری سلائڈ شیئر کروں گی، اس میں اس کے خلاصے جو باقاعدہ جو ایک لفظ اس میں بتایا گیا کہ یہ خلاصہ ہے، آپ پھر ان کو اس طرح سے کر لیجیے گا. ہاں جی میم سلائیڈز نہیں ہے، ریکارڈنگ ہے، تو سلائیڈز اگر شیئر ہو جائیں تو ہاں زیادہ اچھے سلائڈ ہے. میں کر دوں گی شیئر انشاءاللہ. ٹھیک جزاک ہے. اللہ. یعنی کہ اس میں جو بات اہم بات ہے وہ 3 چیزوں سے بچنے کی ہے. کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ اندھیرے کا اس شر میں ہے. ہاں جی اندھیرے کا جی شر ہے. اس کے بعد کون سا ہے؟ جادو وغیرہ کا. اس کے بعد حسد کا. جادو کا اور حسد کا. ٹھیک ہو گیا جی. اندھیرا، جادو اور حسد. اندھیرا، جادو اور حسد. ٹھیک ہے. اچھا جی اب یہ جو آپ کرتے ہیں نا کہ اسم فعل حرف کی بنیاد پر الگ کریں، اس کے بعد آپ نے جب آپ کے ان تینوں میں سے ایک جیسا آنسر آ جائے پھر آپ نے واحد جمع پر آنا. یعنی کہ یہ ترتیب ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ دوسرا سٹیپ ہے، یہ ہمارا تیسرا سٹیپ ہے. اگر ہمارا آنسر یہاں پورا ہو جائے ہم نے ان دونوں کو دیکھنا ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہوا کہ تمام کے تمام اسماء آ گئے، تمام کے تمام افعال آ گئے، حرف تمام نہیں آتے. ٹھیک ہے. پھر واحد جمع پر جائیں گے، سارے واحد آ گئے، پھر مذکر مؤنث پر جائیں گے. جی سسٹر فاطمہ. جی سسٹر وہ تو وہاں پہ تو لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ مؤنث مذکر کے حساب سے علیحدہ کریں، یہ واحد جمع کے حساب سے، یہ اسم فعل کے کوئز میں حساب نہیں سے. ہوگا. نہیں کوئز کی بات نہیں ہے، اکثر ایسے ہی دے دیا جاتا ہے نا. اکثر اوپر ایک دفعہ ہیڈنگ دے دی جاتی ہے، پھر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اسم فعل حرف کی بنیاد پر الگ کریں، اس کے بعد ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے واحد جمع، اس کے بعد لکھا کہ یا مذکر مؤنث کی بنیاد پر. آپ ایسا کریں کوئز میں سے جتنے آپ کے ہوم ورک ہے کوئی ایک نکالنے کوشچن ہم اس کو ابھی دیکھ لیتے ہیں. مجھے لکھوا دیں یا پھر میں خود ادھر سے کھول لیتی ہوں. چلیں جب تک آپ کھول لیں تب تک میں کوئی ایک لکھ لیتی ہوں. اچھا میم جی یہ اب جو کوئز نمبر 16 ہاں جی پوچھیے گا، لکھوا دیں کوئز میں نمبر لکھ 16 17 ہاں لکھوائیں مجھے لکھوائیں. اچھا ہاں جی یہ جیسے کوئز نمبر 16 17 میں ہے کہ سوال میں دیے گئے واحد جمع کے اعتبار سے الگ کریں. تنصرو
انصرو میم جی ہاں جی لا تنصرو نصرتم نصرتو. اچھا جی اس میں سے کوئی واو والا تو نہیں ہے؟ دو وہ والے ہیں ہے نا، یہ انصرو اور لا تنصرو دو وہ والے ہیں واو والے ہیں. دو اور یہ ہے نصرتو. جی نصرتم ہے آخری نصرتم. تم ہاں اچھا جی میم آ رہا ہے ہاں اچھا جی برہان قرآن پاک وہ جو سامنے الماری جہاں پر میری بکس پڑی وہاں ہے، دیکھو لے لو کہ اقرا سے لے لو. اچھا جی یہ تنصرو یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں یہ اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے؟ فیل. یہ سارے کے سارے یہ اس میں جو ہے نا انصرو فیل یہ فعل ہے فیل ہے اب سارے. یہ اسم فعل حرف میں سے سارے کے سارے افعال ہیں. اب ہاں ہم جی نے کیا کام کرنا ہے؟ اب ہم نے اس کو ختم کر دینا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں دیکھنا. اب ہم آ ہاں جاتے ہیں جی واحد جمع پر. اب آپ مجھے بتائیے تنصرو واحد، واحد ہے، انصرو جمع، جمع لا تنصرو جمع، جمع نصرتم نظر، جمع. نصرتم جمع جمع. تو یہ پھر جمع واحد تنصرو جو اس کا جواب آئے گا. واحد الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو میں نے لکھا تھا اب آپ اس میں سے بھی مجھے بتائیں فتح یہ کیا ہے؟ فیل. فیل اور ہیا کیا ہے؟ یہ اسم اسم. اس میں اسم. اور مسلمو اسم. یا اسم مسلمون اسم. اور ہم کیا ہے؟ اسم. اسم اسم. اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جو ہم ہے یہ صرف جمع آ گیا، ہمیں اسم فعل حرف کی بنیاد پر پتا چل گیا کہ ایک فعل ہے باقی سارے کے سارے اسماء ہیں. اسم ہے. ہمیں واحد جمع پر جی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہیڈنگ ایک دے کے سارے سوال اسی کے متعلق پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا آپ کوئی اور کوشچن ہے تو وہ ہم لکھ لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا جگہ پر. میں لکھوں یخلقون اچھا جی ہم یہاں پر لکھتے ہیں یخلقون الکافرون الکافرون جی الکافرون الکافرون تعبدون تعبدون. خلقنا اچھا جی خلقنا. اچھا جی ہمیں بتایا گیا کہ سب سے پہلے اسم فعل حرف دیکھنے ہیں. یخلقون جی. کیا ہے؟ فیل. فیل فیل. الکافرون اسم. اسم اسم. اور تعبدون فیل. فیل خلقنا فیل. فیل فعل. اب یہاں پر کیا ہوا؟ اب ہم نے یخلقون اور خلقنا ماضی مضارع پہ نہیں جانا، یہ پوچھا ہی نہیں گیا. اکثر ہم اس بات میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا، الکافرون کو علیحدہ کر لیں گے ہاں کیونکہ وہ اب ہم نے اسم ہے. دیکھا کہ یخلقون یہ اس میں ہمیں نشانی فعل والی نظر آ رہی ہے، لیکن الکافرون میں واو نون کو نہیں دیکھیں گے، ہم ال کو دیکھیں گے کیونکہ واو نون مضارع میں بھی جمع کی نشانی ہے. اس ال نے ہمیں بتایا اگر ال نہ ہوتا تو یہ ہوتا کافرن، ٹھیک ہے. پھر یہ دو زبر کے ساتھ کافرن ہوتا یا کافرون اس طرح سے ہوتا. تو اس میں پھر کیا ہو جانا تھا، ہمیں اس کو لفظ کو ویسے پہچاننا تھا. کچھ الفاظ ایسے تھے جو ہمیں اسماء کے طور پر پتا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. الکافرون یہاں پر اس لیے الگ ہو گیا کہ یہ 3 افعال ہیں ایک اسم ہے، ٹھیک ہے. کوئی اور کوشچن ہو اس ٹائپ کا جہاں پہ آپ کو کنفیوژن ہوئی ہو؟ میم یہ اعبدو اچھا جی اعبدو تعبدو اعبدو. مجھے ساتھ ساتھ آپ نے تعبدو ہاں آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ میں صحیح لکھ رہی ہوں یا وہ جی جی ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے.
تعبدون تعبدون عبدا आबादा। अच्छा जी, अब आप देखते जाएं ये इसम फेल हर्फ में से क्या है? अबुदू फेल, फेल मुदारे, ठीक है। ताबुदू फेल मुदारे, इसी तरह से ताबुदूना ये भी फेल, आबादा भी आबादा फेल। फेल है। अब ये माजी हो या मुदारे हो या अमर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से सिर्फ ताबुदूना अलहदा होगा ना, ये क्योंकि वो क्यों जमा अलहदा है। हुआ? अब बाकी ये सिस्टर जिन्होंने बताया ये अलहदा हुआ, ये बताएंगी ये क्यों अलहदा हुआ है? ये जमा है, बाकी सारे वाहिद है। बाकी सारे वाहिद है। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। वाहिद है और ये जमा है और ये वाहिद है। जब आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं आप इस तरह लिख लिया करें, ठीक है। उससे ये फायदा हो जाएगा, आप ऐसे पॉइंट आउट करते हैं ये फेल फेल फेल, उसके बाद वाहिद। बाज़ दफा ये होगा कि ये वाहिद 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 वाहिद, तीनों वाहिद हो गए। अब तीन अगर वाहिद हो गए तो यकीनन चौथा जमा होगा। अब अगर तीन मुजक्कर भी हो सकते हैं, जैसे हम कहें कि अबुदू ताबुदू, और इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं इसमें आबादा, लेकिन साथ ही आ जाता है आबादत। तो अब ये जो आबादत होगा, अब जैसे यहाँ पर हम इसकी बजाय लिख लेते हैं आबादत, अब क्या होगा? अब ये सारे जो हैं वो मुजक्कर हैं और आबादत मुजक्कर मुअन्नस है, तो मुअन्नस मुजक्कर से अलहदा मुजक्कर, करेंगे। और ये है मुअन्नस, यानी कि ये लास्ट ऑप्शन है मुजक्कर मुअन्नस वाला, ये लास्ट ऑप्शन है। सबसे पहले इसम फेल हर्फ देखने, अगर अलहदा हो गए तो बस फिर हमने वाहिद जमा पर जाना ही नहीं है। ठीक हो गया जी? और कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसकी समझ ना आई हो? बहुत जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वैया की सिस्टर, चले फिर हम अपनी क्लास को कंप्लीट कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अच्छा बाजी, मैं वो जिस क्वेश्चन के बारे में कंफ्यूज थी तो वो तो मैंने हल कर दिए। तो एक तो पेपर मेरा आधा से ज्यादा वो कहीं मैंने मार्क किया हुआ था जो होमवर्क सेंड करना था ना, जी तो जी नेट की वजह से बंद हो गया। फिर दोबारा से जब मैंने ओपन किया तो बाकी क्वेश्चन किए हुए थे, 5-6 क्वेश्चन रहते थे, वो ऐसे सेंड हो गया। खाली मैं सेंड काफी हो नंबर गया। खाली सेंड हो गया, फिर वो दोबारा से तो नहीं कर सकते उसको। कौन सी सिस्टर बोली? सिस्टर ज़ेबुन्निसा। जी, अच्छा ज़ेबुन्निसा बात मैं आपका पेपर देख लूंगी, तो फिर जी देखते हैं इस पे क्या कर सकते हैं हम। ठीक है जी बाजी, उसी क्वेश्चन के बारे में कंफ्यूज थी ना, वो वाहिद जमा वाला जो नहीं था उसका, उसमें काफी कंफ्यूज थी मैं। हाँ, अब आपको तो समझ आ गई? अब आप मुझे ये बताएं, अब आपको समझ आ गई? जी जी, आप समझ आ गई है, लेकिन पेपर मेरा गलत हो चुका है। हाँ, अब गलत समझ तो आ गई है। अच्छा इसमें ये जी होता है कि जो चीज हमारी गलत होती है ना, वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। जी जी ये तो होता है ना, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपकी गलती निकलेगी ना, उसको फिर आपने गलती को निकाल ही देना है अपनी जिंदगी से। जी इंशाल्लाह 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 जी। अगर और कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर मुझे इजाजत दें ताकि हम बिरयानी बनाएं। ठीक है मैम। चले आप लोग फिर मेरे साथ शेयर भी किया करें ना, क्या क्या बनाते हैं औरतों का सबसे जो मुश्किल तरीन सवाल, आज क्या पकाएं। ठीक है, चले जी, ये थोड़ा सा तो हम आपकी मजाक। बिरयानी के लिए अल्लाह मुबारक लेना फी पढ़ देंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो कल क्विज है उसके बारे में तो कोई आपको क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? वो जिस तरह से हमने होमवर्क किए हैं या हमने मिड क्विज दिया था सेम उसी तरह से होगा, क्वेश्चन आ जाएंगे, सिर्फ टाइम का फर्क होता है कि होमवर्क के लिए पूरा वीक है, बल्कि आपको जब से आपने शुरू किया कोर्स आपको अभी तक सारे होमवर्क खुले मिल रहे हैं, आप कर सकते हैं इसको। लेकिन जो आपका फाइनल एग्जाम है उसके लिए क्विज के लिए आपको 2 या 3 घंटे टाइम बढ़ाया जा सकता है। जल्दी जल्दी नहीं करना, ठीक है? जल्दी के कोई नंबर नहीं होते, या बात आप याद रखिएगा कि जल्दी जल्दी आप करेंगे, मुझे नहीं पता चलेगा आपने 10 मिनट में किया या 15 मिनट में किया, मेरे पास आपके नंबर आएंगे। ठीक है, अच्छी तरह से देखिए सोचिए, पहले नाम ना लिखें, सबसे पहले आप अपने ऑप्शन चूज करें, उसके बाद आप दोबारा वापस आए, देखें कि क्या ये सारे, खुद सोचे कि ठीक है कोई चेंज लग रहा है कि ये नहीं ये होना चाहिए था। जब पूरी तसल्ली हो जाए फिर आप ऐसा करें कि ऊपर नाम लिख के आराम आराम से स्क्रॉल करें, ताकि आपका कोई जो आपने निशान लगाया वो मिटे नहीं। ठीक है, स्क्रॉल करते करते नीचे आए, फिर आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो इंशाल्लाह आपका फाइनल क्विज का रिजल्ट हमारे पास पहुंच जाएगा।
मैम वो ठीक है मैम। ये इसका टाइम क्या होगा फाइनल? टाइम जल्दी 6:30 बजे हम शेयर कर देंगे, तो इंशाल्लाह 9 नहीं तो 9:30 तक इंशाल्लाह आपको टाइम दे दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 6 बजे दे दें, 6 बजे भी शेयर किया जा सकता है। बाजी सुबह भेजेंगे या शाम में? शाम में। सुबह 6 बजे कौन करेगा? बच्चों को भेजेंगे या आप यूज करेंगे? ये बात नहीं, सुबह सवेरे नहीं किया जाता। हाँ, नहीं, आपको 6 बजे देंगे, ठीक है, क्विज 6 बजे दे देंगे। मैं 6:30 इसलिए कह रही हूँ कि आप मगरिब की नमाज आराम से पढ़ लें, नहीं तो आप क्विज मैम बोल देंगे ना, 6:30 नमाज ठीक है। आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक जी है, जी, आप वो वाला आराम टाइम से फिर हमारा ऐड हो जाएगा। हाँ, आप ऐसा करें 6:30 बजे, हम ऐसा करेंगे जी। कि 9 की बजाय 9:30 बंद कर देंगे। ये इतना तो आप करेंगे 6:30 इंशाल्लाह। दें मैम। हाँ। ठीक है, 6:30 बजे इंशाल्लाह कल आपको क्विज मिल जाएगा। आप सबको अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत बहुत ज्यादा कामयाबियां दे, और हमने इंशाल्लाह आमीन। नियत की है कि रुकना नहीं है रमजान के बाद इंशाल्लाह QC2 में। ये मेरी क्लास में चाहती हूँ कि ये पूरी भी हो इंशाल्लाह। अगर अगर और भी QC1 करके आए शामिल हो तो इंशाल्लाह हम उसको वेलकम भी करेंगे। जी। ठीक है, अल्लाह मैम ताला मैं और सबके लिए आसानियां करे जी। तो बाजी क्विज के दौरान हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अच्छा जी, आप ये नहीं। तो नहीं पूछेंगे कि ये इसका जवाब ये हो सकता है या ये तो नहीं पूछेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं पूछते, सिर्फ आप हमें थोड़ा सा क्लू दे देना, कोई समझ नहीं आ रही हो तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पता है क्या हमने कहा है कि आओ कुरान सीखें आसान तरीके से, ठीक है। हाँ, ऐसा करेंगे कि हम ये जो हमारा टीम वर्क वाला ग्रुप है ना, इसको हम बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जिसने कर लिया वो उसमें फिर बातचीत ना शुरू करे, ताकि बाकी आराम से करें। आप मुझसे या हफ्सा से राब्ता कर लें। जैसे अब आप समझ लें कि आपके पास कोई 4 ऑप्शन है, आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे, माइंड आपका बिल्कुल ब्लैंक हो गया, तो इसके लिए हम आपको हिंट दे देंगे कि अच्छा, आप अगर आपको बहुत मुश्किल पेश आ रही है, आप नहीं समझ पा रहे, मतलब चीटिंग नहीं करवाएंगे। हम कहेंगे कि आप इसको इस तरह से थोड़ा सोच के देख ले, ऐसे करके देख ले। इतनी बातचीत तो इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवीजन के बाद मुझे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो सबकी बड़ी अच्छी है, पक्की पक्की तैयारी है। इंशाल्लाह अच्छा पेपर करेंगे सब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले जी, फिर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद वालेकुम रखिएगा। अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।